of today's discussion, we will talk about in the mixed dentition, if we have caries, grossly caries, or hypermineralized or pathological first molar in the mixed dentition, then what could be different strategies to manage the first molar or to manage the crowding in the mixed dentition stage. So this is a very tricky topic, and it's a very common clinical situation. So I will start the discussion. What are the indication of extraction? Indications क्या हो सकती हैं कि poor prognosis. If we quickly divide a tooth in three parts, so we can have a crown part, we could have a root part, and we could have a periodontium part. So there is a possibility we could have a grossly carious crown structure of the first premolar molar. We could have a situation in which the root are filled. However, this is a very nicely filled root by some consultant. Second reason, and there could be have a periapical pathology that you can see over here. Periapical pathologies or whatsoever, if you are having a very periodontitis, so incisors and molar periodontitis in the molars are very common as well in the juvenile periodontitis, which is called. So quickly categorizing the tooth in 2-3 parts, what are the factors variable that we'll be considering? The crown part, if it's grossly carious or grossly restored, you can see it's grossly restored, so definitely it's needing a crown. So this is actually the OPG of a permanent patient, but my point is this: we will be looking on 3-4 areas. We will be looking on the structure of the crown, we will be looking on the amount of the restoration, we will be looking on the quality of the obturation and the status and condition of the roots, we will be looking on the periapical pathologies, and we will be looking on the periodontal condition of the teeth. So just a minute. So these are the factors that we normally see for assessment of the prognosis. Prognosis में हमने crown structure को देखा, root canal को देखा, periapical pathology को देखा, ठीक है. इसके अलावा हमें first permanent molar कब, कहाँ और कैसे एक्सट्रैक्ट करना है. मेरा पॉइंट अभी तक हमने बात क्या की है, हमने बात की कि अगर क्राउन उसका ग्रॉसली केरियस है, ग्रॉसली रिस्टोर्ड है, रूट में कोई मसला है, रूट पुअरली ऑब्चुरेटेड है, पेरियापिकल पैथोलॉजी है, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स है, तो उसकी प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म लाइफ उसकी जो है वो कितनी रहेगी और कितना लंबा हम उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर यही पेशेंट 9 साल का बच्चा जो है वो अगर 49 इयर्स की एज में प्रेजेंट करता, तो डेफिनेटली अवर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट. The point is this: even you cannot guarantee and you cannot commit to the patient that the long-term health over the 30 or 40 years would be good. For example, if you do very nice restoration, you give everything best. However, at the age of 39 or 29, the patient has to get the implant 20 years down the road, 20 or 25 years down the road. You will definitely be saying it as a successful treatment. Am I right, Dr. Agha? 25-30 साल चल गया तो हम उसे कहेंगे वी आर वेरी सक्सेसफुल. बट इन द अदर व्यू, यू हैव टू गिव इम्प्लांट एट द एज ऑफ 35 इयर्स. ओके, तो उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, सारा कुछ एक्स्ट्रा सर्जरी है वो. हम आज ये बात करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस होंगी कि हम फर्स्ट मोलर को एक्सट्रैक्ट कर दें और सब कुछ स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर के साथ हो जाए. बेसिकली जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ये है कि अगर आपके पास मिक्स्ड डेंटिशन स्टेज में केरियस और पुअर प्रोग्नोसिस के साथ एक फर्स्ट मोलर प्रेजेंट कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो ड्रिफ्टोडोंटिक और स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर के साथ हमने पढ़ा था, कि वी कुड एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट परमानेंट मोलर एंड at the favorable stage of dental development, the second permanent molar can use and can utilize all the space of the first permanent molar. For example, in this particular case, all the first permanent molar are grossly carious. You have done the extraction of the all first permanent molar, considering many other variables which I'm going to discuss in the lecture, and this has been all the spontaneous space closure without any mechanotherapics, without using any orthodontic mechanics. What happened? The second permanent molar has
erupted in such a way that it has erupted and utilized all the space created by the extraction of first permanent molar. But you can do this in a very selected patient. वो selected patient क्या होंगे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं. Basic philosophy क्या है spontaneous space closure की कि at certain stage of dental development, if we do the extraction of the first permanent molar, then second and third molar will utilize all the space generated by the extracted first molar, and you can develop a very nice contact point if you do extraction at the right timings. You can see the 5 and 7 erupt at the age of 12 years. The root of the 5 is almost complete. This cannot be 7. This is definitely 8. Okay. So this is after the mechanotherapy. हमने उसके mechanics use किए और उसको align कर लिया. This is the 8. So what we learned so far, there is a philosophy of spontaneous space closure. When it happen, if we do the timely extraction of the first permanent molar, then the posterior teeth will erupt in such a way that it will utilize all the space of the first permanent molar in a selected cases. Okay, you can see the same case, but here we have a different situation. We have some overjet, we have some teeth, but here point to be noted, we don't have the third permanent molar, but we have the grossly carious first molar. So far we have discussed in the introduction, we know about that if we do timely extraction of first molar, then there is a possibility of spontaneous space closure. When we do the extraction of first molar in the poor prognosis, we do first extraction. Sometimes we do extraction to relieve the posterior crowding, and normally in orthodontic we do extraction for through two things. One is for the relief of the crowding, and the other is for the correction of overjet and for the retraction of the teeth and the movement of the labial or posterior teeth. So the first permanent molar can be extracted if there is a posterior crowding at any stage, or you predict posterior crowding or severe anterior crowding, which is severe anterior crowding means that with the extraction of the first permanent molar, you will first premolar you get around 7 mm space. Okay, with the extraction of first premolar you get around 7 mm space, but with the extraction of the first permanent molar you get around 10-11 mm of space. So if you have a severe crowding, severe proclination of the teeth, there is a possibility that you can use all this space of the first permanent molar for the retraction and retraction, overjet correction. ठीक है, ऐसे ही है. Compensatory extraction का मतलब क्या है कि एक होती है balancing, जो कि midline के लिए होती है. Balancing extraction is for the midline. Compensatory extraction is to correct and maintain the molar relationship. So what happened? We do the extraction of the first permanent molar. For example, if we do extraction of the lower, then there is a possibility that upper can supra erupt and can block the mesial movement of the and it can block the mesial movement of the lower second molar. My point is this: for example, if I have done extraction of this first permanent molar of the lower arch, then there's a possibility that the upper first molar can supra erupt and it may block the mesial movement of this second molar. So we can do the extraction of the opposite tooth in the opposing arch, जो बिल्कुल उसको oppose करो opposite quadrant में, this is called compensatory extraction, to avoid supra eruption and to avoid blockage or the resistance of the labial mesial movement of second molar. ये होगी 3-4 हमने रीजंस डिस्कस की. पुअर प्रोग्नोसिस में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पोस्टीरियर क्राउडिंग में या एंटीरियर सीवियर क्राउडिंग में जो फर्स्ट प्रीमोलर के साथ रिलीव नहीं हो सकती. हम एक कंपेंसेटरी एक्सट्रैक्शन के तौर पर रिलीज करते हैं और ओपन बाइट के केसेस में कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट जो है वो फर्स्ट मोलर के ऊपर आ रहा है, थर्ड मोलर प्रेजेंट है, तो हम ओपन बाइट एज अ वेज इफेक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगी. वेज इफेक्ट कैसे कि हमने अपर और लोअर फर्स्ट मोलर को एक्सट्रैक्ट किया और जो है वो यहाँ पे जो कांटेक्ट आ रहा था वो रिलीज हो गया और ओपन बाइट जो है वो क्लोज होना शुरू हो गई. सो फॉर वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द many variables. The most important is the presence or absence of the third molar. Here in this case you can see the
buds of the third molar. So we are very confident about the presence of third molar. When you do the extraction of this tooth, this will move forward as it happened. The second molar has moved forward, and the third molar is erupting. You can see the third molar. So what about here? Here you have a situation. You have poor prognosis of the first molar, but you have missing third molar. What if we do the extraction of this tooth? To some extent it will move forward and will come and occupy this space. Then what would happen to the occlusion of upper second molar? रैप कर जाएंगे अपर सेकंड मोलर जो है बिल्कुल, और उसके लिए अपोजिंग तो है ही नहीं, उसका होना ना होना बिल्कुल एक ही बात है। अपोजिंग तो जब नहीं है तो वो सुप्रा रैप कर जाएंगे। दिस इज द वेरी रीजन, यही कंसेप्ट आपको डेवलप किया था कि हम इसी चीज को मेंटेन करने के लिए जो है वो अपोजिंग या कंपनसेटरी एक्सट्रैक्शन करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल इज द आइडियल केस फॉर द फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्शन इन द मिक्स्ड इंडिशन स्टेज is when we know about the radiographic evidence of third molar. Okay, in this particular case you can do the extraction of first primary molar, and in this case you cannot because of the absence of the first primary molar. Then the very important reason, the stage of the dental development. क्या हमने फैक्टर्स देखना शुरू किए? एक हो गया थर्ड मोलर, दूसरा हो गया कि जब हम टूथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं व्हाट इज द डेंटल एज ऑफ द डेंटिशन। द आइडियल केस, ये तीन चीजें हैं, ये बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा। द आइडियल केस फॉर द स्पॉन्टेनियस क्लोजर इज व्हेन द सेकंड मोलर हैज फॉर्म्ड अप टू द बाइफर्केशन एरिया। अगर इसकी रूट्स ज्यादा बन गई हैं तो ड्रिफ्टोडोंटिक और स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर जो है वो इतने अच्छे से नहीं होगी, प्रॉपर बिल्कुल कांटेक्ट पॉइंट नहीं आएगा जिस तरह से पहले आया था। एक बात कि आपका जो है वो सेकंड मोलर की फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल बाइफर्केशन एरिया तक होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा रूट बनी हुई तो स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर विल नॉट हैपन, एंड you have to use the mechanics or orthodontics to align and to close the space and to correct the angulation of the teeth. So the other variable is dental development. इसके अलावा ये होता है कि proximity. Ideally speaking, the ideal cases for the spontaneous closure जिसमें कि bifurcation area तक बनी हुई हो और first और second molar जो है वो second molar overlap कर रहा हूँ। इसमें ओवरलैप तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके जितना करीब है, जितना ओवरलैप कर रहा है, जितना इसको टच कर रहा है, जितना इसके पास है, जितनी प्रॉक्सिमिटी है, उतना वो आइडियल केस होगा फॉर द स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर। तीसरी चीज आती है एंगुलेशन। ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ की, ये आपने लाइन ड्रॉ की। आइडियल केस क्या होना चाहिए कि ये फर्स्ट मोलर और इसके दरमियान जो है वो 15 से 30 डिग्री तक का एंगल बन रहा हो। ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन जो है वो ये और ये ऐसी होनी चाहिए कि इनके दरमियान 15 से 30 डिग्री तक का अगर एंगल है तो ये बेहतरीन होगा और स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा फैक्टर है स्केलेटल रिलेशनशिप, ओवरजेट एंड ओवरबाइट। फॉर एग्जांपल इस केस में थर्ड मोलर है, सब कुछ ठीक है, इसकी डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो ओवर हो चुकी हुई है। इस स्टेज पे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर नहीं होगी, फुल नहीं होगा, लेकिन स्केलेटल रिलेशनशिप जो है वो इसमें क्लास 2 है, ओवरजेट आइडियल केस होगा और उसमें वो हो जाएगा। फिर ये बात है अमाउंट एंड साइट ऑफ राइडिंग। वेरी लॉजिकल कि इफ द क्राउडिंग इज इन द पोस्टीरियर सेगमेंट, मोलर्स प्री मोलर एरिया में क्राउडिंग है तो वो ज्यादा फेवरेबल होगा। अगर देखो ना, फर्स्ट परमानेंट मोलर आर नॉट वेरी गुड टीथ for orthodontic reasons. The reason is they are very far away from the area of concern. For example, if you have huge overjet, so for the overjet, the best tooth for the extraction is first permanent molar, very near to the area of, very near to the target area. We want to retract the overjet. We do the first extraction of the first
premolars, then it's more suitable for the overjet. However, if we do extraction in the posterior segment or in the posterior region, then this is not a very suitable tooth if you are having anterior crowding and if you are having anterior target area. ठीक है, so the amount and the site of crowding is very important. Skeletal relationship important है, वो मैं अभी बाद में बात करते हैं. Status of the molars in the opposing arch. Opposing arch is important क्योंकि इसके साथ हम compensatory extraction plan करते हैं. Compensatory extraction क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि it is the extraction of the opposing tooth. नीचे का फर्स्ट मोलर निकाला है तो ऑपोजिट जो है भी फर्स्ट मोलर निकाल देंगे ताकि ये हैंग करके इसकी मीजियल फॉरवर्ड मूवमेंट को ब्लॉक ना करे. ठीक है, whenever we do extraction the lower arch, we normally have to do either we have to do the extraction of the upper arch or we have to give a kind of a space maintainer to maintain or to prevent this supra eruption of the upper first molar into the. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अच्छा, एक फैक्टर क्या था कि 8 to 10 years की रफली क्रोनोलॉजिकल एज हो जिसमें के डेवलपमेंटल स्टेटस ऐसा हो कि 7 की रूट फॉर्मेशन बाइफर्केशन एरिया तक हो. ठीक है, आइडियल टाइमिंग क्या होता है कि जब लेटरल साइजर अपर लेटरल साइजर कब अरप्ट करते हैं, एट द एज ऑफ 8 years. ठीक है, 8 यानी कि अपर लेटरल साइजर अरप्ट कर चुके हुए हों. आइडियल टाइम उसका क्या है, बट 5 और 7 जो है वो अरप्ट ना किए हुए हों. Ideal angulation 15 to 30 की axis हो between the long axis of the crypt of the first and second molar, or the root of the lower 6 is overlapped by potential problems. However, if we do extraction late, यहाँ पे ये मैं आपको एक सिचुएशन है लेट एक्सट्रैक्शन का. यहाँ क्या हुआ कि लेट एक्सट्रैक्शन हुई थी. अच्छा, लेट एक्सट्रैक्शन में मैंडिबल में तो स्पेस को ये बहुत मुश्किल होती है, मैक्सिला में बड़ी रैपिडली हो जाती है. तो यहाँ पे ज्यादा मसला आपको मैक्सिला में नजर नहीं आ रहा. यू कैन नोटिस ओवर हेयर कि you don't have a proper angulation and you don't have the proper long axis of the second molar. One. Number 2, you have residual spaces and you have a lot of gap between the roots of the 5 and 7. This is because the extraction has performed very late. अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों टाइमिंग्स की जो बात है ना कि if we do लेट एक्सट्रैक्शन तो उसके ये इश्यूज हैं कि एल्वेओलर नेकिंग हो जाएगी. देखो ना, एल्वेओलर नेकिंग क्योंकि हमने फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट किया था उसकी जो वो नेक बन गई. और दूसरा क्या हुआ कि लॉन्ग एक्सेस खराब हो गया, स्पेस प्रॉपर्ली पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई. और ये हुआ अर्ली में क्या इशू है कि अगर आप 8 साल से पहले करते हैं तो 8 years इज अ टाइम. ये आपका क्वेश्चन भी आगे आएगा कि इससे पहले आपको 8 का पता नहीं चलेगा. द रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ द 8 जो है वो आपको तब पता लगेगा जब 8 साल से ज्यादा 8-10 साल एज होगी तो आपको पता लगेगा. और अर्ली एक्सट्रैक्शन करने के और भी इश्यूज हैं कि जो इसको मैं अभी आपको बताऊंगा पोटेंशियल उसकी प्रॉब्लम. चलो इसी खोला ही तो दिक्कत करते हैं फर्स्ट मोलर के एक्सट्रैक्ट करने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि जैसे कि आप इस ओपीजी में देख रहे हैं कि आपके पास एक ग्रॉसली कैरियस टूथ है जिसकी लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस आपको क्वेश्चनेबल है. क्वेश्चनेबल मींस के 20-30 साल में जाकर के खराब हो जाता है. इफ वी डू एक्सट्रैक्शन एंड वी अचीव स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर देन इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी स्मार्ट अप्रोच बिकॉज इन दिस वे ऑल द स्पेस वुड हैव बीन क्लोज्ड विदाउट एनी effort. Okay, so and the second reason which you explored कि this advantage के ऊपर बेटा क्लास 1 का मतलब क्या है कि अब जो हम क्लास 1 में इसके 2 प्रोटोकॉल्स हैं, जरा गौर और ध्यान से सुनिएगा. One protocol is when you have a minimal crowding and the other protocol is when you have a moderate crowding and you want to utilize this space. So here in this situation what happened, you had done the extraction of the first molars and all the space which you will gain by the extraction of the first permanent molar will be utilized by spontaneous mesial movement of second molar. So all of this space will be utilized and you cannot this extraction space for the management of the crowding. Is this clear? If you have crowding in this anterior segment तो वो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सारी की सारी स्पेस जो है वो तो सारी की सारी स्पेस क्लोज हो गई है ड्रिफ्टोडोंटिक के साथ. सारी की सारी स्पेस तो 7 ने यूज कर ली और आगे आ गया. अब अगर आपके पास एंटीरियर क्राउडिंग है तो वो आप इस एक्सट्रैक्शन स्पेस से मैनेज नहीं कर सकते. इसलिए ये आप काम कर रहे हैं मिनिमल क्राउडिंग में. एंड इफ यू हैव
a moderate crowding, a situation like this. You have moderate to severe crowding, and you want all this space, all of this crowding space to be used by the extraction space of the फर्स्ट मोलर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड मोलर की eruption का, फिर आप एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे. ये सबसे बड़ा कैच पॉइंट है अब तक की डिस्कशन का. अभी तक हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द आइडियल डेंटल एज, व्हाट इज द आइडियल डेंटल एज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट मोलर when you will get the spontaneous space closure. So now a very important point what I'm telling to you people is, if you have crowding and if you want to utilize the extraction space of first permanent molar, then you will not extract tooth. You will not extract tooth first permanent molar. Why you will not extract? Because then you will wait for the eruption of second molar into the arch. जब second molar arch में आ जाएगा, then you will stabilize the position of the second molar by lingual arch or by Nance appliance or by somehow, ताकि वो आगे first molar के extraction space में ना जाए. फिर जब आपने इसको stabilize किया second molar की position को, then you have done the extraction of the first molar to utilize this extraction space for the management of premolar or labial segment crowding. Here the situation is class 1. Class 1 means you don't have a severe overjet, you don't want this space for the lips, you don't have any overjet नहीं है ज़्यादा. class 1 में obviously overjet में नहीं होता, और lips आपके बिल्कुल ठीक है. और quickly इसको बताएगा ज़ैनब गिल, आप बताइए बेटा अपने अल्फाज में. सर इससे हमने यही बताया कि अगर हमने इंटीरियर क्राउडिंग को रिमूव कराना तो हम तब तक जो है वो 6 की एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे जब तक हमारा 7 इरप्ट नहीं हो जाता. जब 7 इरप्ट होगा तो हम वहाँ पे स्पेस मेंटेनर देंगे उसको, वहाँ मतलब किसी लिंगुअल आर्च के थ्रू उसको वहाँ पे स्टेबल करेंगे, और फिर हम उस एक्सट्रैक्शन स्पेस को जो है वो यूटिलाइज करेंगे इंटीरियर क्राउडिंग के रिलीफ के लिए. ठीक है. नॉर्मली हम ऑर्थो में एक्सट्रैक्शन 2 रीजन से करते हैं, एक क्राउडिंग रिलीफ करने के लिए, दूसरा लेबियल सेगमेंट अगर उनके प्रोक्लेशन को इंक्लिनेशन को ठीक करने के लिए, या लेबियल सेगमेंट को रिट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है. अभी तक क्लास 1 मैलिफ्लुएंट का मतलब ये है कि आपके पास ओवरजेट नहीं है, प्रोट्रूसिव लिप नहीं है, क्लास 1 प्रोफाइल है. इज दिस क्लियर? तो वो तो चीजें इसमें वेरिएबल अभी डिस्कस ही नहीं हो रहे. मिनिमल क्राउडिंग का मतलब क्या है कि अब आपके पास क्राउडिंग नहीं है, अब आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ यू वांट द स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर एंड यू वांट all the space of first permanent molar to be closed by the spontaneous diprotodontics and mesial movement of the second molar. If you have crowding, then you want to hold and maintain the position of the second molar in that particular space, and after the extraction of the first permanent molar, you want to utilize all the space gained by the extraction to be utilized for the management of the crowding. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes सर sir. आपने ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन की सेकंड रीजन क्या बताई है लेबियल सेगमेंट का? अच्छा, मैंने सेकंड रीजन ये बताई थी. देखो बेटा, फॉर एग्जांपल जस्ट अ मिनट, मुझे केस खोल लें तो. देखो बेटा, ठीक है, ये था पहली थी सिचुएशन क्राउडिंग की. इफ यू हैव सिचुएशन लाइक दिस ओवरजेट, ये ओवरजेट ठीक करने के लिए यू नीड सम स्पेस. ठीक है. So you may need to do extraction in the premolar to retract the labial upper labial segment distally या posteriorly. ठीक है. एक तो रीजन हो गया क्राउडिंग रिलीफ करने के लिए, दूसरी रीजन हो गई कि अपर या लोअर लेबियल सेगमेंट को पोस्टीरियरली या डिस्टली मूव करने के लिए यू वांट स्पेस, एंड यू विल गेट दिस स्पेस बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रीमोलर मोस्टली. तो आप ये वेरिएबल क्या देखेंगे. ठीक है. म्यूट कर लीजिए आपको. अच्छा, ये हो गया क्लास 1 का प्रोटोकॉल. क्लास 2 में क्या होता है? क्लास 2 में मसला क्या है कि आपके पास है ओवरजेट. ठीक है. 2 रीजंस मैंने बताई अभी, अनिला से ने पूछी थी कि एक क्राउडिंग रिलीफ करने के लिए, एक लेबियल सेगमेंट को पोस्टीरियरली या डिस्टली मूव करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं. अगर क्लास 2 हमारे पास कैरेटल बेसिस है
तो लोअर आर्च और अपर आर्च में क्या प्रोटोकॉल होगा? जैसे कि मिनाहिल ने और आप लोगों ने कंसेंसस डेवलप किए, अगर हम एक ह्यूज ओवरजेट में लोअर 6 एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट विल इंक्रीज, दिस मे इंक्रीज द ओवरजेट और दिस विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द ओवरजेट. सो इन द लोअर आर्च फर्स्ट मोलर शुड बी कंसीडर्ड एट द ऑप्टिमम टाइमिंग. ऑप्टिमम टाइमिंग में क्यों? ताकि अगर हम ऑप्टिमम टाइम पे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड मोलर सारी की सारी स्पेस यूज कर लेगा और एग्जैक्टली फर्स्ट मोलर की स्पेस पे या जगह पे आ जाएगा. ठीक है, तो उससे लोअर लेवल सेगमेंट के रिट्रैक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे. ठीक है, अदरवाइज अगर वो पार्शियल स्पेस क्लोज हुई और आधी पचद्दी स्पेस जैसी भी है. क्लासिकल केस ऑफ द क्लास 2 में हम क्या करते हैं कि हम इसमें ट्विन ब्लॉक दे देंगे, फंक्शनल प्राइस दे देंगे और ये ओवरजेट ठीक हो जाएगा बाय द मैंडिबुलर एडवांसमेंट या मैंडिबुलर ग्रोथ के साथ, टेम्पोरेरीली मैंडिबुलर ग्रोथ के साथ. बट इफ यू हैव पुअर प्रोग्नोसिस, ये हम बात करें अपर की, लोअर की हमने बात खत्म कर दी कि लोअर की अगर पुअर प्रोग्नोसिस है तो हम आइडियल टाइम पे एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि स्पॉन्टेनियस क्लोज हो जाए. नाउ सिचुएशन इज यू हैव ओवरजेट एंड यू हैव पुअर प्रोग्नोसिस of the upper molar. So if we are using functional price, then take it as a normal case. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. फिर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट परमानेंट मोलर एट द ऑप्टिमम टाइम, और ऑप्टिमम टाइम पे हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया और सेकंड मोलर जो है वो स्पॉन्टेनियसली मूव करके फर्स्ट मोलर की जगह पे आ गया. तो सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही कि अगर हमने फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट कर भी दिया तो भी क्या हुआ कि जो फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सेकंड मोलर था वो एग्जैक्टली उसकी जगह के ऊपर आ गया फर्स्ट मोलर की, और आप अपना आराम से जो है वो फंक्शनल प्राइस देना है तो दें. सिंपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस फर्स्ट मोलर है, देन सो व्हाट, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, 7 जो है वो 6 की जगह पे आ गया, तो बिल्कुल नॉर्मल केस की तरह ही ट्रीट किया आपने और फंक्शनल प्राइस दी जिसके साथ ओवरजेट ठीक हो गया. ये तो तब हुआ जब आपने फंक्शनल प्राइस दी. इज दिस क्लियर? सो व्हाट कि अगर आप बच्चा फंक्शनल प्राइस नहीं पहनता और वो फंक्शनल यूज नहीं करता तो हमारे पास इस ओवरजेट को ठीक करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैंडिबुलर एडवांस कर लें ग्रो करवा के, या अपर प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट करके अपर लेबियल सेगमेंट को रिट्रैक्ट कर लें. ठीक है, सो विदाउट द फंक्शनल क्या किया, हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं. एक ये कि अगर हमने फंक्शनल प्राइस नहीं यूज की जिससे मैंडिबुलर ग्रो करके आगे नहीं आया तो फिर हमारे पास दो तरीकेकार है. और से सुनिएगा, समझें इसको. फिर हमने क्या किया कि जिस तरह हमने क्राउडिंग के लिए जगह को यूज किया था ना, यूजेज ऑफ द एक्सट्रैक्शन स्पेस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेटजी जो है वो ये हो सकती है कि हम टेम्पोराइज करें 6 को, सिर्फ पेन फ्री कर दें और 6 विल बी होल्डेड इन द आर्च जस्ट एज अ स्पेस मेंटेनर. 7 जो है वो अरप्ट करेगा एंड वी विल वेट फॉर द eruption of the 7. When the 7 would erupt, then we would give a space maintainer like a Nance appliance. 7 को होल्ड करेंगे, then we will extract 6. और जिस तरह हमने 6 की स्पेस को क्राउडिंग की यूटिलाइजेशन में यूज किया था, अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस एक्सट्रैक्शन स्पेस ऑफ द 6 फॉर द करेक्शन ऑफ द ओवरजेट. इज दिस क्लियर? कि 6 अगर पुअर प्रोग्नोसिस है और ओवरजेट ज्यादा है यानी क्लास 2 है, तो हमने क्या किया कि उसका वेट किया फॉर द eruption ऑफ द 7. जब 7 अरप्ट हो गया तो हमने जो है वो नेंस अप्लायंस दी, उसको होल्ड किया, 6 को एक्सट्रैक्ट किया एंड वी यूटिलाइज ऑल द एक्सट्रैक्शन स्पेस ऑफ द 6 फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द क्राउडिंग. लेक्चर लंबा हो गया तो मैं क्विकली जरा इसको समराइज करता हूँ. अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं कि 6 को एक्सट्रैक्ट कर दें ऑप्टिमम टाइम पे, 8 साल की स्टेज पे 6 को एक्सट्रैक्ट किया, 7 जो है वो 6 की स्पेस पे आ गया, स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर हो गया. अगर स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर हो गया तो ओवरजेट आपका ठीक नहीं हुआ. अगर तो 6 आपने 8 साल की एज में एक्सट्रैक्ट कर दिया, 7 स्पॉन्टेनियसली मूव करके आगे आ गया, तो इसका मतलब है सारी की सारी स्पेस जो फर्स्ट मोलर के एक्सट्रैक्शन से हासिल हुई थी वो क्लोज हो गई बाय द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द अपर सेकंड मोलर. नाउ यू हैव टू क्लोज दिस ओवरजेट बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ द बाइकस्पिड्स. सो दो बातें मैंने की कि अगर आप फंक्शनल अप्लायंस के साथ ये ओवरजेट ठीक नहीं कर रहे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या अपर फर्स्ट भी मोलर निकाल के ओवरजेट ठीक कर लीजिए, या वेट करें फॉर द eruption ऑफ द सेकंड मोलर
ये आ जाए, erupt हो जाए, then we will utilize the lens appliance and hold the space, and then you will retract the upper label segment distally into the extraction space of 6. Is this clear? हमने प्रोटोकॉल डिस्कस किया क्लास 2 का। लोअर आर्च में हम बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम पे एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि स्पॉन्टेनियस मूव हो जाए और लोअर लेवल सेगमेंट रिट्रैक्ट ना हो। अपर फर्स्ट मोलर के लिए हम डिस्कस करते हैं कि अगर तो हम विद द फंक्शनल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, देन डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट परमानेंट मोलर एट द ऑप्टिमम टाइम। 8 साल की एज में कर दीजिए आप, ताकि 7 जो है वो स्पॉन्टेनियसली मूव करके 6 की जगह पे आ जाए और ये सारा ओवरजेट जो है ये ठीक हो जाएगा विद द फंक्शनल अप्लायंस। However, if the patient is not using the functional appliance or without the functional, then you have two strategies. Either you will wait for the eruption of the second molar at the age of 12 years. We will maintain it till the age of 12 years. Then we will do the extraction of the first permanent molar and utilize this upper molar extraction space for the correction of the overjet by the retraction of the upper label segment. Alternatively, we can do the extraction of the upper label bicuspids and we can retract the upper label segment into the extraction space of the bicuspid. So this is the protocol for class 2. Quickly कोई रिवाइज करवाएगा इसको? जैनब गिल आप बताइए इसको। सर इसमें अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि विद फंक्शनल अप्लाइज करें या विदाउट फंक्शनल। अगर विद फंक्शनल अप्लाइज करें तो हम जो है वो 6 को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फंक्शनल अप्लाइज के थ्रू जो है ना वो हम अपना ओवरजेट ठीक करेंगे। अगर विदाउट फंक्शनल अप्लाइंस करें तो हम जो है वो पहले 6 को होल्ड करके रखेंगे और 7 की इरप्शन का वेट करेंगे। जब 7 इरप्ट होगा तो हम 6 को होल्ड करके 6 को होल्ड करके रखेंगे, नहीं 6 को होल्ड पेन फ्री करेंगे, पेन फ्री करेंगे बस बिल्कुल, ताकि वो करेंगे पेन फ्री करेंगे 7 इरप्ट हो जाए जब तक। ठीक है। और उसके बाद 7 को हम स्पेस मेंटेनेंस के थ्रू जो है वो होल्ड करेंगे और फिर वेट करेंगे कि जो हमारी स्पेस है वो ओवरजेट जो है वो क्लोज हो जाए। हाँ, एंकरेज के थ्रू स्पेस में करेंगे, स्पेस में करेंगे। ठीक है। और एक है कि हम बाइकस्पिड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओवरजेट की करेक्शन के लिए। और इस केस में जब बाइकस्पिड करना है तो फिर हम मोलर की एक्सट्रैक्शन किस एज में करेंगे? ऑप्टिमम एज में। ठीक है, 8 साल की एज में। ठीक है, थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं जरा क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। जवेरिया आप बताएंगे, फिर अनिला आप बताएंगी। जवेरिया स्टार्ट हो जाओ। ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं, विद फंक्शनल अप्लायंस और विदाउट फंक्शनल अप्लायंस। ये हम बात कर रहे हैं अपर की। ऐसे करेंगे तो लोअर में तो हमारे कंसेंसस डेवलप है कि जी बिल्कुल लोअर में हम कब करेंगे कि जब जो है वो ऑप्टिमम टाइम पे, ताकि सारी की सारी स्पेस क्लोज हो जाए। अगर स्पेस बच गई तो फिर ब्रेसेस लगाए तो हमें चांस होगा कि अपर लेवल सेगमेंट रिट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए लोअर में तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो हम करेंगे एट द एज ऑफ 8 के ऑप्टिमम टाइम पे, ताकि जो है वो स्पॉन्टेनियस स्पेस क्लोजर हो जाए उसमें। अब अपर 6 की बात करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? अगर तो हमने फंक्शनल अप्लायंस अपर 6 को जो है हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, 7 उसकी जगह पे आ जाएगा। और फिर हम जी अगर फंक्शनल अप्लायंस यूज कर रहे हैं तो फिर हम फंक्शनल अप्लायंस देके तो ओवरजेट को करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर विदाउट वो है फंक्शनल अप्लायंस है तो उसमें हम लोग जो है 6 के लिए सिर्फ पेन रिलीफ कर देंगे और फिर 7 के इरप्ट होने का वेट करेंगे। जब 7 इरप्ट हो जाएगा तो फिर जो है उसके बाद हम लोग 6 को जो है एक्सट्रैक्ट करके तो उसको एंकरेज के थ्रू पीछे जाएंगे ओवरजेट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है। या फिर हम बाइकस्पिड को भी जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है? या हम बाइकस्पिड्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस केस में हम कब करेंगे? कर सकते हैं। इस केस में हम कब करेंगे एक्सट्रैक्शन फर्स्ट परमानेंट मोलर की? एट द एज ऑफ 8 इयर्स। अगर हम बाइकस्पिड करे तो हम फर्स्ट परमानेंट मोलर की एट ऑफ एज 8 में कर देंगे ताकि स्पॉन्टेनियस क्लोज हो जाए। अब ये जब बाइकस्पिड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि थर्ड मोलर प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर थर्ड मोलर भी ना हुआ तो आपने तो तबाही मचा दी। 4 भी निकाल दिया, 6 भी निकाल दिया, 8 वैसे ही नहीं हुआ, तो फिर इस केस में मेक श्योर कि 8 वैसी। क्लास 3 में क्या मसला है? अब जरा क्विकली इसको समझिएगा। क्लास 3 में इशू ये है कि वी हैव अ कनकेव प्रोफाइल। ठीक है, तो क्लास 3 में सिर्फ 3 बातें आपको याद रखने के लिए। एक तो ये कि इसमें कोई बैलेंसिंग के कंपेंसेशन, एक तो बिल्कुल ये बात रखिएगा बैलेंसिंग क्या होती है कि सेम आर्च के ऑपोजिट साइड से।
किसी भी फर्स्ट मोलर में हम बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन नहीं करते। बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन की जाती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मिड लाइन। कंपनसेटरी एक्सट्रैक्शन नॉर्मली की जाती है क्लास 1-2 केसेस में, लेकिन क्लास 3 के पेशेंट में हम कंपनसेटरी एक्सट्रैक्शन रिकमेंड नहीं करते लोअर आर्च में, पहली बात। दूसरी ये कि जो है यहाँ पर क्या मसला है कि प्रोफाइल जो है वो कनकेव है। सो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट मोलर एट द ऑप्टिमम टाइम इन क्लास 3, स्पेस क्लोजर ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैंडिबल ग्रो कर रहा होता है और फिर रेजिडुअल स्पेसेस रह जाते हैं। क्लास 3 के अगर ग्रोथ का पैटर्न आपको याद हो कि इसमें ग्रोथ ज्यादा चल रही होती है, ज्यादा देर तक चल रही होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्लास 3 वाले केसेस में आप ऑप्टिमम टाइम पे फर्स्ट मोलर की एक्सट्रैक्शन करेंगे ताकि वो स्पेस क्लोज हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्लास 3 के केसेस में क्या होता है, मैंडिबल का साइज ज्यादा बड़ा होता है ना, तो वो स्पेस रेजिडुअल स्पेस रहने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, any intelligent would be answering this question कि अगर क्रॉस बाइट है क्लास 3 के पेशेंट में तो अपर 6 के एक्सट्रैक्शन हाउ डज इट वुड अफेक्ट ऑन द एंटीरियर क्रॉस बाइट? Any intelligent would like to answer this question? मिनाहिर जी बेटा बोलो। सर वो तो क्रॉस बाइट को इंक्रीज कर देगी अपर एग्जैक्टली अपर 6 से एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्लास 3 और वर्सन हो जाएगी। एग्जैक्टली क्लास 3 जो है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि अगर आपने ऑप्टिमम टाइम के ऊपर अपर 6 से एक्सट्रैक्शन नहीं की और रेजिडुअल स्पेसेस रह गई और उस रेजिडुअल स्पेस क्लोज को करने के लिए आपने ब्रेसेस लगाए, स्पेस करेक्ट करने की, स्पेस क्लोज करने की कोशिश की, तो वो क्रॉस बाइट जो है वो और बढ़ जाएगी। इसलिए फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन अपर आर्च में की जाती है आफ्टर द करेक्शन ऑफ द ओवर एंटीरियर क्रॉस बाइट। एक दफा एंटीरियर क्रॉस बाइट ठीक हो गई तो ये लॉकिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। If the first permanent molar is present in the upper arch, this extraction can be done once after the crossbite has been coming back to the potential problems. Potential problems क्या हो सकती हैं अपर आर्च में? देखो बेटा, potential problems ये हो सकती हैं कि आपने एक्सट्रैक्शन की और आपने उस स्पेस को यूज करना है either for the correction of the crowding or either for the correction of the overjet. मैक्सिला में क्या इश्यूज होते हैं कि स्पेस क्लोजर बहुत रैपिड हो सकती है और there could have been the possibility that you could not be able to use this space for management of crowding or overjet. So you have to be very smart in the management of the timings and in the management of the anchorage. For example, if salmon erupt, so because of the porous bone, you could observe a very rapid space closure. So you have to do the extraction of the upper 6 very timely if you want to use this space for the overjet and for the crowding management. और दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या अपर 6 जो है वो रोटेट हो सकता है। जब भी ये इजीली मूव करता है तो पैलेटल रूट्स जो है इसकी बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द बकल रूट्स, तो ये पैलेटल रूट के ऊपर रोटेट कर रहा होता है। सो यू कुड हैव अ सीवियर रोटेशन ऑफ द अपर 6 अपर 7 when they move easily. मैक्सिला आर्च की पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या थी? स्पेस क्लोजर बहुत रैपिड है। अगर आपने उस केस को ओवरजेट के क्राउडिंग के लिए यूज करना है, आपको नेंस या हेडगियर अप्लायंस देनी पड़ेगी और आपको रोटेशंस के इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि अगर आपने टाइमली एक्सट्रैक्शन नहीं की, लेट की, तो एल्वियोलर नेकिंग हो सकती है। दूसरा क्या है कि रूट पैरालिज्म का इशू हो सकता है अगर आपने लेट एक्सट्रैक्शंस किए हैं, तो यू कुड हैव अ इशू ऑफ द रूट पैरालिज्म कि मीजली इंक्लाइंड रूट होगी, यू कुड हैव एल्वियोलर नेकिंग, यू कुड हैव दीज प्रॉब्लम्स। कमिंग टू द मैंडिबल में क्या है कि एंटीरियर क्राउडिंग अगर है, इसका तो बेटा इशू ही यही है, आप कर रहे हैं बहुत पीछे एक्सट्रैक्शन, अगर तो क्राउडिंग एंटीरियर है तो ये सारा मसला जो है ये आपको बड़े ट्रिकी उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा, एक बात। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप प्री मोलर के एक्सट्रैक्शन करें तो वो तो बड़ा आसानी के साथ स्पेस क्लोजर होता है, पीछे करेंगे फर्स्ट मोलर की तो ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, स्पेस क्लोजर जो है थोड़ा सी मुश्किल होती है लो मैंडिबल प्लेन एंगल में। लो मैंडिबल प्लेन एंगल में क्या होता है कि वी कुड हैव अ लाइक सिचुएशन कि अक्लूजल प्लेन बिल्कुल फ्लैट होता है और अक्लूजल लॉकिंग इफेक्ट होता है। अक्लूजल लॉकिंग फ्लैट मैंडिबल प्लेन पे, फ्लैट अक्लूजल प्लेन पे जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए उनके लॉकिंग इफेक्ट होने की वजह से लो मैंडिबल में स्पेस क्लोजर जो है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दिस डिसीजन मेकिंग आफ्टर द एज ऑफ द 8 years. We need to see the dental developmental stage. We have to do it very timely. If we do late, then we have the issue of the parallelism. We have some issue. If we do early, then we have some other issues के lower 5 escape होके 6 की जगह पे ना चला जाए। हमें ओवरजेट को देखना है, हमें स्केलेटल रिलेशनशिप को देखना है, हमें लिप्स को देखना है, हमें ओवरजेट ओवरबाइट को देखना है, हमें स्टेटस ऑफ द अपोजिंग टूथ को देखना है कि वो किस तरीके से
जो है वो कंपनसेटरी एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही. दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी. द सेशन इज ओपन.